So mirror formula is 1 upon V plus 1 upon U is equals to 1 upon F. Linear magnification is defined as the height of image to the height of object, where HO is the height of object, HI is height of image. Linear magnification की definition, linear magnification of spherical mirror is defined as the ratio of height of image to the height of object. Now since for concave mirror the image can be formed two types, either real inverted or virtual and direct. Since we know that for upward images the sign conventions are taken positive, so if this is the object, AB is the object which is taken upward to the principal axis, that's why HO should be taken as positive. If it is forming the real inverted image, so it is formed in the downward direction of principal axis, just like in minus negative y axis. So height of image in this way it should be taken negative. Now according to the definition, M is equals to HI upon HO. HI is negative, HO is positive. Negative upon positive, answer negative. So I can write M can be negative, and negative will be formed always and always. HI will be negative because by default always object will be placed in upward direction, so HO will be positive always by default. So the sign of M will be decided only and only by HI. If the HI will be positive, final answer will be positive. If HI is negative, final answer will be negative. So M is negative. Negative can come only and only if image is real and inverted. If real and inverted, and real inverted is formed by only and only negative, answer may come only and only when the image is real inverted, which can be done only and only in the case of concave mirror. So either the question would be saying if you are using the concave mirror, it magnifies the image 2 times, then you need to write M is equals to -2. Concave mirror means M negative. Or if the real and inverted image formed 2 times, real inverted means also M negative, M -2. M is equals to -2. Similarly, M will be positive if image should be erect and virtual. तो जब भी इरेक्ट और वर्चुअल होगी HI हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी. सो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, HI भी पॉजिटिव, HO भी पॉजिटिव, फाइनल आंसर पॉजिटिव. तो M का आंसर पॉजिटिव तब आएगा जब कंपलसरी इमेज कैसी बन रही हो? वर्चुअल एंड इरेक्ट. और वर्चुअल इरेक्ट 2 केसेस में बन सकती है, या तो बने कॉनकेव के थ्रू या बने कॉन्वेक्स के थ्रू. तो M पॉजिटिव कॉनकेव लोगे जब वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बोली जाए, क्योंकि हमें पता है लार्ज भी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज बनेगी तभी कॉनकेव मिरर होगा. तो M विल बी पॉजिटिव. अगर आपको बोल दिया है कि इफ द मिरर इज फॉर्मिंग लार्जर वर्चुअल इरेक्ट इमेज, M शुड बी पॉजिटिव. सिमिलरली ऑब्जेक्ट इफ मिरर इज फॉर्मिंग वर्चुअल इरेक्ट 2 टाइम्स, या सॉरी 2 टाइम्स नहीं, स्मॉलर बनेगी 1/2 टाइम्स. तो स्मॉलर इमेज बनेगी कब? जब कौन हो? कॉन्वेक्स. तो वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर हो तो भी M पॉजिटिव आ जाएगा. तो आपको ध्यान रखना है M पॉजिटिव 2 तरीके से आ सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के केस में आ सकता है. और इनफैक्ट बोल दिया कि इफ द हाइट ऑफ इमेज इज हाफ टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज वर्चुअल, 100% कॉन्वेक्स. स्मॉलर इमेज है, वर्चुअल है, ठीक है, मैग्निफिकेशन हाफ टाइम्स. अगर बोल दिया इफ द कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स सम इमेज हुज हाइट ऑफ इमेज इज 1/4, तो कॉन्वेक्स मिरर का मतलब ही हो गया M पॉजिटिव. तो M पॉजिटिव कंपलसरी फॉर पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. किसके लिए? कॉनकेव के लिए. अब भाई कितनों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? अंदर दोनों कॉन्वेक्स में कंपलसरी M की वैल्यू पॉजिटिव, कंपलसरी पॉजिटिव. किसके लिए? कंपलसरी फॉर कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया तो M पॉजिटिव. कॉनकेव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की इमेज बन रही है. अगर रियल इमेज बन रही है तो M नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज बन रही है और लार्ज इमेज बन रही है तो पॉजिटिव होगा.
डन। तो ये था लीनियर मैग्निफिकेशन। प्रीवियस क्लास में वैसे मिरर फॉर्मूला कर ही दिया था, फिर भी वापस से मिरर फॉर्मूला इज दैट formula which gives us the relationship among the quantities object distance, image distance and focal length. Object distance is represented by u, image distance represented by v, f is the focal length of the corresponding mirror. कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कॉन्केव के लिए हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। बाय डिफॉल्ट u को हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने रखेंगे तो u नेगेटिव आएगा, v पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है तो v की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, वर्चुअल इरेक्ट है तो हमेशा v की वैल्यू पॉजिटिव। डन। कॉन्वेक्स के लिए हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है तो कॉन्वेक्स मिरर होते ही v पॉजिटिव लिखना है। कॉनकेव में ध्यान देना है, रियल इन्वर्टेड बन रही है तो v नेगेटिव, वर्चुअल इरेक्ट लार्जर बन रही है तो v पॉजिटिव। सो दिस इज द कंप्लीट समरी फॉर मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू कीप इट इन माइंड। ठीक है भाई, कितना समझ में आ गया?